Once again, a hearty welcome to you from our RNTU family, Rabindranath Tagore University family, Faculty of Humanities and Liberal Arts, and yes, the dedicated centers to promote culture, to promote ethics, to promote the Indian heritage, I must say that. So to begin with, I'll start again with a quote that everything in the universe has rhythm, everything dances, by the quote by Maya Angelou. As per my thinking, if you say, I always say dance is a feel, dance is a passion, dance is an emotion. And wherever you are, if you get into the dance, you forget everything. As I shared a couple of times with you earlier also, that my first dream was to be a dancer. And I really love dance, still is on date. But anyways, the destiny took me to somewhere else, but still my passion is with me. So I consider dance as a passion. And in this, even in this pandemic time, I can say that this is one of the relaxation therapy we can follow to release our all agonies and stress and to be in peace and harmony. So I really extend a hearty welcome to ma'am. And I know that recently I have seen your video that ma'am, present. So that was really indeed wonderful video I have seen and I've shared with my other people as well. So we in the Rabindranath Tagore University, ma'am, not only supporting the academics, but we are also touching upon the overall curricular activities, and specifically we are touching upon the literature and arts because we follow the Rabindranath ideologies, philosophies, and he always believes in creativity. As in, like he believes in academic as well. So we consider that, and since 2019, I must say that we have organized the international festival, and this was being really taken care by our own Vinay sir, who is actually heading TICAC, Tagore International Center of Art and Culture. So consequently, continuously 2 years, 2019-20, we went for that festival, and last year we have made a landmark presence across the world, wherein 15 countries across globe participated in that event. As an outcome of that event, because everything has an outcome. So as an outcome of that event, we further proceed with the establishment of dedicated center. We started with the center, as I always say, Vanmali Srijan Kendra. Then we move on to the Tagore Vishwakala Evam Sanskriti Kendra, Kala Evam Pradarshankari Kendra. So these centers were dedicatedly working earlier also, but with this now we have further more centers to strengthen the overall, you can say, the heritage of our country and to make our remarkable presence across globe. So with that, we also have Pravasi Bharatiya Sahitya Evam Sanskriti Shodh Kendra with us. We also have Anuvad Kendra Translation Center, which will definitely promote the translation, the literature in various languages. So that will promote that. And we also have the Bhasha Shikshan Kendra School of Languages, wherein not only we are supporting the foreign languages, but we are also promoting Hindi in the foreign countries. That is our vision, that is our mission we are working with. And also we are having Sanskrit Evam Prach Bhasha Kendra. How can we forget that to touch upon? Taking up into the consideration the new education policy, which is now thrusting upon the regional languages. So in all, we have 7 centers, dedicated centers under the aegis of Faculty of Humanities and Liberal Arts, coined by, or you can say, the dream of our Honorable Chancellor Sir, who always believed in these 2 philosophies, that technology is there, but if we are not having the literature into it, we are missing the soul of it. So he always supports that. And with his wisdom, with his guidance, we are just starting with all these centers, madam. And we are really happy to see that these 3 centers together today have taken a tremendous step to start culture. And the first thing is to bring out the awareness among societies. आपने बिल्कुल सही कहा, जो कला की हम बात करते हैं, आज भी हमारे देश चीज को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हमें ठीक करने की जरूरत है, और इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम आगे बढ़ें, हम हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको इसकी परंपराओं और इसके बारे में बताएं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि नृत्य एक कला है, हम इसकी हमेशा पूजा करते हैं। तो बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि हमारे साथ विनय सर हैं और उनको सुनने का सबका मन करता है, तो मैं आपके और विनय सर के बीच में और नहीं आना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम वर्चुअल, और बहुत जल्दी हम चाहेंगे, आप कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपना तो ये था कि आप हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में आए, लेकिन कोई बात नहीं,
में भी पूरे आएंगे। होंगे। बिल्कुल आएंगे जरूर मैम, होंगे, जरूर और आऊंगी। प्रीति मैम बोली भी थी मुझे कि वो आप भी आइए, आप भी आइए, सब लोग बिल्कुल आइए बिल्कुल कभी आएंगे। नालंदा। हमें तो आपके यहाँ का मैंने वीडियो ही देखा, तो अब तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं एक बार बिल्कुल आऊँ वहाँ पे। जरूर, वी विल डेफिनेटली मीट वंस अगेन टुगेदर, बट स्टिल सो फार कोई बात नहीं कि हम इस तरह से एक दूसरे के साथ हैं, बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम साथ हैं। So I think now it's time for Vishakha to proceed with the interaction, and definitely जो हमारे ऑडियंस हैं आज, वो कुछ नया इस कार्यक्रम से लेकर जाएंगे, कुछ ऐसा जो उन्हें आज तक पता ना हो, या कुछ ऐसा जो वो जानना चाहते हो, तो वो सवालों के माध्यम से चैट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं, और विनय सर जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो विशाखा, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for the welcome words, and also for introducing all the centers to all of us here, especially Dr. Rele, because she's now the new member of the family. And soon I'm sure she's going to be the permanent and always being together family member with us. तो आज का कार्यक्रम आगे शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दरअसल कोई सेशन नहीं है, लेकिन ये एक परिचर्चा है जिस पर कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। लोक और शास्त्रीय नृत्यों का जो सांस्कृतिक अंतर संबंध है, इस पे विनय जी आज कुछ सवाल रखेंगे, और रिले मैम उस पर कुछ उन सवालों पर कुछ प्रकाश डालेंगी। आप लोगों को बता दूं कि आज के जो सवाल होने वाले हैं वो बहुत खास होंगे। क्यों खास होंगे? क्योंकि आज विनय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ भोपाल, न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश में जाने जाने वाले कला समीक्षक हैं, और उनकी कही हुई बातें कितनी खूबसूरत होती हैं और वो कितने बढ़िया तरीके से सवालों को रखते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। और आपने कई महत्वपूर्ण सम्मान आपको मिले हैं, कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपने संचालन का काम जो है बखूबी किया है, और चाहे सांगीतिक कार्यक्रम हो, चाहे नृत्य के कार्यक्रम हो, चाहे रंगमंच की प्रस्तुतियां हों, आपने लगातार लगभग हर तरह के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है, उन चीज़ों को समझा है, जाना है, और आप लगातार अखबारों में भी कला समीक्षक के रूप में तो लिख ही रहे हैं, और ख़ास दिनों पर भी कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हैं। कल ही आपका एक बेहतरीन आर्टिकल भी हमने पढ़ा जो नृत्य दिवस पर था। तो लगातार आप लिख रहे हैं, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात और ये भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का जो टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र है, उसके आप निदेशक हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वविद्यालय का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विश्व रंग, उसको कोऑर्डिनेशन का काम भी आप बखूबी कर रहे हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया से साहित्य और कला जगत के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो अब हम सोच सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार होने वाला है, जहां विनय जी सवाल करेंगे। और डॉक्टर उमा रेली के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि आप लगातार कई वर्षों से, लगभग 2-3 दशकों से आप भरतनाट्यम प्रस्तुतियां तो दे ही रही हैं, साथ ही साथ आपकी दृष्टि नृत्य की तरफ जो है वो एक शोधार्थी की तरह भी है। लगातार आप उसमें शोध कार्य कर रही हैं, और कई छात्र छात्राओं के साथ में शोध कार्य करवा भी रही हैं। तो बहुत दिलचस्प होने वाली है ये चर्चा, और अब मैं वाकई यहाँ बोलना बंद करूंगी, एंड नाउ आई इनवाइट बोथ ऑफ यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड बिगिन विद द डिस्कशन टुडे। जो अटेंडीज हमारे हैं, यदि आपके पास कोई सवाल है, आपको कोई जिज्ञासा आती है, तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल यहाँ भेज सकते हैं। इस परिचर्चा के अंत में हम आपके सवालों को ज़रूर यहाँ पर प्रेषित करेंगे। तो विनय जी, शुरू किया जाए। धन्यवाद विशाखा, थैंक यू सो मच। और आज सबसे पहले तो इस विषय पर आयोजित इस परिसंवाद में हमारे लिए बतौर मेहमान, बतौर विशेषज्ञ, एक कला विदुषी के रूप में, नृत्य विदुषी के रूप में हाजिर डॉक्टर उमा रेले का मैं टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र, हमारे विश्वविद्यालय और तमाम वो केंद्र जो कि एक साझेदारी में हमारे साथ आज इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, और इस परिचर्चा को सुनने के लिए और इसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने के लिए जो भी हमारे प्रतिभागी इस परिचर्चा में हिस्सेदार बन रहे हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर उमा रेली से यूं तो बातचीत का फलसफा बहुत बड़ा होने की संभावना है, और हम कोशिश करेंगे कि इस लगभग 1 घंटे की अवधि में वो तमाम प्रश्न कर सकें जिनसे गुजरकर डॉक्टर उमा रेले
हमारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों के बीच में जो एक सांस्कृतिक अंतर संबंध है, उनसे जुड़ी हुई तमाम पहलुओं को खुलासा कर सकें। मैं बातचीत शुरू करूं उसके पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या मुझ में नमी के नाम पर कुछ भी न रहा, क्या बहते दरिया के नाम पर कुछ भी न रहा, आए थे वीर कल रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी न रहा। जब हम इस शेर में एक सवाल की तरह हमारी तहजीब को देखते हैं तो हमें फक्र से कहना पड़ता है कि भारत शायद विश्व का ऐसा देश है जिसके पास अपनी हजारों बरस पुरानी सांस्कृतिक विरासत है। और उस गौरवशाली विरासत की खूबी यह है कि आने वाले समय में हमेशा सक्षम उत्तराधिकार ने या आने वाली पीढ़ियों ने उसे अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपने पुरुषार्थ में धारण किया और एक लंबी परंपरा में हमने अपनी विरासत को बचाए के रखा है। तो जब हम विरासत की बात करते हैं, कलाओं की बात करते हैं, तो उसमें हमें नृत्य सबसे पहले हमारे भीतर पहुंचता है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता भी है कि गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीतम उच्यते, यानी गीत वाद्य और नृत्य को मिलकर ही हम दरअसल संगीत की परिभाषा को पूर्ण मानते हैं। तो इसमें नृत्य जो है एक बहुत अनिवार्य तत्व की तरह आता है। विषय पर आने से पहले ये हम सबके भीतर बड़ा कौतूहल जागता ही है कि सबसे पहले हमारे जीवन में हमारे उस आदिम पुरुष ने पहले कैसे नृत्य किया होगा, उसके भीतर वो कहाँ से हिलोर जागी होगी। तो हमारी कल्पना में आता है कि उसने जब आसमान पर उमड़ते बादलों को गरजते देखा होगा, जब उसने हवा की सरसराहट को देखा होगा, जब उसने पेड़ों पर आ रही कोमल कोमल सी पत्तियों को, उसमें खिलती हुई कलियों और फूलों को देखा होगा, जब उसने बहते हुए झरने को देखा होगा, जब उसने नदी और समंदर में लहराती हुई पानी की उन लहरों को मचलते हुए देखा होगा। इन सबको देखकर अनायास ही जैसे उसके भीतर एक हिलोर जागी थी और वो पहली थिरकन, जो पहला रोमांच हुआ होगा उसके देह में, तो देह, मन और आत्मा के मिलन से जब वो थिरका होगा, तो हम मान के चलते हैं कि वही पहला नृत्य होगा हमारे आदि पुरुष का। लेकिन अगर हम अपने पौराणिक संदर्भ को खंगालें, तो नृत्य के जो देवता हैं वो नटराज हैं, ताल और काल के देवता महादेव, जिनसे कि हम नृत्य को मानते हैं। उन्होंने तांडव किया था, तो तांडव शिव ने किया और लास्य जो है वो पार्वती ने किया। तो तांडव और लास्य को मिलकर हम अपनी इस पूरी नृत्य की परिभाषा को पूर्ण मानते हैं। आज अगर हम शास्त्रीय नृत्यों पर एकाग्र होकर सोचें, तो शास्त्रीय नृत्य हमारे पास आए उससे पहले हमारे पास जनजाति और लोक नृत्यों की एक बड़ी श्रृंखला आई। लेकिन धीरे धीरे उन तमाम नृत्यों में जब एक अनुशासन को देखा, जब उसके एक पूरे पूरे सर्वांग सुगठित रूप की कल्पना हमारे कला ऋषियों ने की, तो इस तरह से एक देशी से मार्गी हो जाने की यात्रा में हमने जनजाति और लोक नृत्यों के साथ साथ शास्त्रीय नृत्यों को भी देखा। तो शास्त्रीय नृत्यों की भी हमारे साथ हजारों बरस की एक लंबी परंपरा है। बहरहाल इस पर तो सारे पहलुओं पर खुलासा करेंगी डॉक्टर उमा रेले, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प संयोग है कि जब मैं तांडव के साथ लास्य की बात कर रहा था, तो मैं शिव के साथ उमा यानी पार्वती की बात कर रहा था, और आज हमारे बीच में साक्षात नामवाची संज्ञा के रूप में, और यदि हम देखें तो अपने कर्म से भी और अपने पुरुषार्थ और भाव से भी हमारे बीच में उमा जी उपस्थित हैं। तो मैं पार्वती की उपस्थिति उमा जी आपकी मानता हूँ। तो आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी शुद्ध ब्यूटीफुल हिंदी, काव्यात्मक मेरे लिए तो ऐसे लग रहा है मुझे। जैसे मैं कल आपसे बात कर रही थी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग। और संगीता मैम, विशाखा मैम एंड विनय जी, आप एंड ऑल्सो अवर वाइस चांसलर सर, कि आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान दिया। आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मुझे समझता नहीं मैं कैसे बोलूं। मैं कल भी विनय जी से बात करते हुए बात कर रही थी कि मुझे एक तो आज के ज़माने में इंग्लिश ऐसा हो गया है, हिंदी और इंग्लिश या कोई भी भाषा का ऐसा सिचुएशन है कि कोई शुद्ध भाषा अनफॉर्चुनेट है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसे आई एम फीलिंग बैड व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये ऐसी सिचुएशन है। और दूसरी बात ये है कि मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से हूँ, जहाँ पे अपने वेरी ओन अमिताभ बच्चन जी ने इलाहाबाद से आए हुए होने के बाद उनकी जो भाषा, उन्होंने जो फिल्मों में प्रचलित की वो थी अपुन और तुपुन।
तो अगर मेरी कोई गलती हो तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि उमा जी, जितना हो सके उतना मैं आपके लेवल की हिंदी बोलने की कोशिश करूंगी, मगर अगर कहीं मैं अटक गई तो मैं जरूर भाषा का कुछ मिक्सचर कर लूंगी। तो आई उमा जी, होप। जी आप बिल्कुल इस धारणा को पहले तो आप निकाल दीजिएगा। हम जिस तरह से आपसे बात कर रहे हैं, दरअसल वो हमारी कितनी स्वाभाविक सी भाषा बन चुकी है, क्योंकि दरअसल इन्हीं कलाओं के और साहित्य के आसपास और अपने केंद्र की गतिविधियों को संचालित करते हुए आप जैसे ही लोग हमारे संपर्क में आते हैं, और आप जैसे लोगों के प्रभाव से ही दरअसल हमारी एक भाषा इस तरह से बन पाई है। उमा जी, वैसे विशाखा ने आपका परिचय दे ही दिया है, और आप नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई का संचालन करती हैं। और मुझे एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक आपके साथ जुड़ता नजर आ रहा है कि आप जो हैं वो डॉक्टर कनक रेले की शिष्या भी रही हैं, जो कि मोहिनी अट्टम की हमारे देश की एक बहुत ही मूर्धन्य नृत्यांगना और कला विदुषी है। और उमा जी, मैं कल आपसे कह रहा था तो मुझे याद आया फिर से कि आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर कनक रेले जी से हमारा भी सानिध्य का सौभाग्य हमको भी मिला। भोपाल में कई दफा वो आती रहीं, और उनके साथ हम तमाम नृत्य की विधाओं पर बातचीत करते रहे, और उनसे निश्चित रूप से बहुत सारा हासिल भी किया। तो आप अपने स्वयं के घर परिवार से जो संस्कार लेकर आई, वो तो आपके पास अपने खून में चलकर आया। लेकिन कितना अच्छा संयोग है कि जीवन के एक मुकाम पर डॉक्टर कनक रेले गुरु के रूप में भी आई, और सास के रूप में भी आपके साथ आप उनकी बहू हैं। तो हाँ देखिए जी। ऐसा, जी, तो ऐसा तो सादा। सर एक्चुअली ऐसा था कि मेरे माता जी के घर में भी हमेशा संगीत कला का बहुत ही क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस रहा है। एक जमाना था जबकि मेरे फादर से लेके हम सब, पंकज मलिक से लेके केएल सहगल जी के गाने, मतलब वी यूज्ड टू सिट एंड सिंग टुगेदर एज अ फैमिली। सो जी, म्यूजिक या कोई भी कला हो वो हमसे जुड़ी हुई है। गजलों का बहुत शौक था पूरे घर में, तो ये सब चीजें हमारे उधर से तो आई है मम्मी के यहाँ से। हाँ जी, ये जो एक मन में इच्छा थी कि मुझे कॉमन ग्रेजुएशन करके नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं करना है, और मुझे शास्त्रीय नृत्य में, क्योंकि मैं सीख रही थी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डांस, क्लासिकल डांस और भरतनाट्यम में सीरियस प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाई करूं। तो जब ये चीज आई सामने तो मेरे घर से ऐसा कहा गया कि एक डिग्री ले लो, फिर बाद में आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है अपनी लाइफ से, नो प्रॉब्लम। सो तभी मैंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, बीए किया, और फिर मैं नालंदा में एंटर हुई। पता नहीं था कि ये रिलेशनशिप बदलेगी आगे चल के, वो बहुत अच्छा। चलिए, कुछ भी तो पता नहीं था, और ऐसे ही ये राहुल की और मेरी पहचान हुई और आगे चलता रहा संसार। हाँ, और मैंने कल भी आपसे कहा कि गुरु शिष्य परंपरा की जो हम हमेशा बात करते हैं, तो शायद गुरु शिष्य परंपरा में आश्रम में रहना बहुत ही जरूरी है। गुरु के साथ सानिध्य में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शायद मेरे भाग्य में ऐसे था कि ये थोड़ा रिलेशनशिप बदल गया। मगर हाँ, आज हम जो भी करते हैं नालंदा में या आज अपने पर्सनल लाइफ में, हम सभी टीचर्स या बच्चे, स्टूडेंट्स आजकल के भी जो संशोधन की इच्छा रखते हैं या नृत्य को कहीं कि बहुत गूढ़ इसमें अभ्यास करने के लिए सोचते हैं, तो नालंदा जैसा उन्होंने बनाया कनक जी ने, जहाँ पे हम लोग जा सके, हम समझ सके कला के बारे में, कला के फिलोसॉफी के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, ये जो सब हम सीख सके वो डेफिनेटली कनक जी की वजह से है। तो हम आज जो भी है वो उनकी वजह से, और मैं नसीब हूँ कि मैं ये घर में रहती हूँ, तो शायद वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आज भी वो अंदर बैठे हैं तो मुझे मालूम है कि शायद मेरी आवाज पहुंच रही होगी, तो आई एम अवेयर कि आई एम गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड, आई एम गोइंग टू बी हर्ड। तो हमेशा इट्स ऑलवेज लाइक अ टाइट रोप वॉकिंग, बट आई प्रेफर इट एंड आई एंजॉय इट। आई एम थैंकिंग गॉड। जी, मैं जी, बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। उमा जी, बहुत अच्छा लगा ये तमाम सारे संदर्भ जो रेफरेंसेस हैं, वो जब पूरी जुड़कर हम शख्सियत को देखते हैं तो बातचीत करने का मजा कुछ और हो जाता है। तो बहरहाल चलिए हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। उमा जी,
आपने तो इतने लंबे अपने नृत्य की यात्रा में भी और लगातार, जैसा कि हमें मालूम है कि आपका महाविद्यालय नृत्य में शोध को विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो यदि हम ये देखें और आज के विषय पर अगर हम एकाग्र होकर सोचें, फोकस होकर सोचें, तो देखिए कोई भी जितनी भी हमारी शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, मतलब भरतनाट्यम जो कि सबसे पहला माना जाता है तमिलनाडु का, कि उस देवदासी परंपरा से निकला, वहां से लेकर हम कथक की बात करें, कथकली की बात करें, कुचिपुड़ी की बात करें, मोहिनीअट्टम की बात करें, ये तमाम नृत्य शैलियां शास्त्र की, ये कहीं न कहीं अपने एक रीजनल इन्फ्लुएंस से, यानी कि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव से निकल कर ही आई हैं। और बाद में बरसों के पूरे संज्ञान के बाद, उसके अध्ययन और शोध के बाद में ये शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में इन्हें मान्यता प्राप्त हुई। तो अगर हम लोक और शास्त्र के उस सांस्कृतिक अंतर संबंध की बात करें, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं हमेशा अपने लोक कला और लोक नृत्य के बारे में मुझे बहुत ही ऐसे लगता है कि वहीं से हम जुड़े हुए हैं, वहीं से हम आगे बढ़े हुए हैं। आगे बढ़े हैं या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, बट जुड़े हुए हैं, लेट अस से, क्योंकि कोई कला किसी भी कला से कम नहीं होती। तो जो प्रोग्रेस रही है सोसाइटी की, जिस तरह से सोसाइटी ग्रो हो रही थी, वैसे ट्राइबल से फोक से क्लासिकल, ये एक माना जाता है कि ऐसे ये जर्नी रही है किसी भी कला की। तो जो रूट है सभी चीज का वो ट्राइबल या फोक, लोक कला या लोक नृत्य या जो भी बोलिए, तो वही सही बात है, वही जर्नी हुई है। मगर अगर हम देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी, जैसे कहें कि बाबा गणपति है या देवी है, वो भी वैसे देखा जाए तो ट्राइबल से निकले हुए देवी देवता हैं, जो बाद में उन्हें फोक में या क्लासिकल में लिया गया। तो कॉन्सेप्ट से लेके आगे चल के इवन फॉर्मेशंस में अगर देखें, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि देशी और मार्गी का जो भरत ने नाट्य शास्त्र में कहा है वो तो है ही है। और षोडशोपचार के हिसाब से 16 जो क्या बोलते हैं, जो तरह है अलग अलग जो भगवान को पूजा करने की, उसमें नृत्य और संगीत ये 16वां रिचुअल है, ऐसा माना जाता है। जहाँ से ये देवदासी कल्ट शायद उसी वजह से शुरू हुआ, और जरूर वहाँ, बट मगर फिर भी ये जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज है ना, उसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। हम जैसे आज मुझे आपके सामने बैठना था, मैं भले कहूँ कि मैं भरतनाट्यम प्रैक्टिस करती हूँ, हम हैं हिंदुस्तानी, बहुत सारी चीजें हम एक साथ देखते हैं। तो मैं हूँ, रहती हूँ मुंबई में, मगर मेरा जो रूट है, मैं हूँ गुजरात की, तो वो कहीं ना कहीं मुझे खींचता है, वो कल्चर, वो, क्योंकि वहां लगता है कि नहीं, पता नहीं ये रूट है हमारा, और फिर उससे सब आगे जाता है। और जो लोक कला थी, मतलब जैसे कुम्मी, कोलाट्टम, वहां से शायद, वहां से भरतनाट्यम का बहुत क्लोज संबंध, बहुत घनिष्ठ संबंध है, जिससे बेसिक हम बोलते हैं ना अडोज या स्टेप में भी कहीं ना कहीं उनकी ये कलाओं की झांकी दिखती है। या कथकली को लेके चले तो कथकली भी कहीं ना कहीं उनके जो बेसिक जो आर्ट्स थे या थिएटर आर्ट्स थे, चाक्यार कूतू या वो दे आर सेमी फोक टाइप ऑफ थिएटर्स, जहां से कथकली का फॉर्मेशन हुआ। ये जो अगर हम देखें कि ये जो सिस्टमैटिक मार्ग ट्रेडिशन, जो एक रास्ता जो बना, वो ये सब चीजों को साथ लेके ही हुआ है और समृद्ध हुआ है, ऐसा मैं हमेशा मानती हूँ। और खाली सिर्फ इतना ही है कि लोक कला और उसमें हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का फीलिंग होता है, जहाँ पे टीम वर्क है, जहाँ पे कलेक्टिव सोल का काम है, हम एक टीम वर्क सीखते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो पिंडी बंदस की तरह हम हाथ पकड़ के चलते हैं। तो एक जो पावर होता है, वो जो एनर्जी उसमें से उपजती है, वो एक साथ होती है, तो वो एक्सट्रोवर्ट होती है वो एनर्जी, या एक्सट्रोवर्ट अपना एक्सप्रेशन होता है।
सिर्फ जी जब हम क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो इंटरनल जर्नी है, वो खुद के साथ अपने अंदर झांकने की एक जर्नी है जो हमें अलग एक ये डायलॉग है वो ऊपर वाले से अलग तरह का जी इंडिविजुअल डायलॉग है, संवाद है, और वो जी एक अलग, मगर वो जन्मा डेफिनेटली यहाँ से। ये ही कनेक्शन है जिसने शायद जब जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती गई, लोग सोचने लगे तो उन्हें समझा। बाकी तो चार प्रवृत्तियां भरतर ने भी कही है, जी जो चार अलग अलग अपने देश की प्रवृत्तियां थी जहां से अपने क्लासिकल आर्ट्स भी जन्मे। तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही है और होना भी चाहिए, उसकी एक हाँ अलग ही मिठास है। हाँ कनक जी, उमा जी, अभी आप जब ये सब बता रही थी और आपने भी कुछ कहा कि कहीं ना कहीं तो रीजनल इन्फ्लुएंस है ये, मतलब यानी हम यदि कहें कि अगर हमारे दो देव पुरुषों को हम मानते हैं कि एक तरफ नटराज हैं, दूसरी तरफ नटवर हैं, तो नटवर कृष्ण हैं और नटराज शिव हैं। तो देखिए कि हमारे तमाम मिथकों में, हमारे पौराणिक प्रसंगों में, इनमें अगर हम देखें तो हमारा लोक नृत्य हो चाहे हमारा शास्त्रीय नृत्य हो, शिव और कृष्ण, इन दोनों की जो महिमा है, इनकी जो लीलाएं हैं, ये बिल्कुल किसी भी नृत्य से अछूती नहीं है, बिल्कुल। अब बिल्कुल, जी, और इसमें उनके अभी बिना कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि अगर जी ये दो दो नटवर और नटराज को आप अलग करो तो कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। कोई जी भी कला क्योंकि क्या, अस्तित्व हाँ ही नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि दरअसल भारत की जो आस्था है और भारत के जो जीवन कर्म है, उसके जो अनुष्ठान है, उसकी जो परंपरा है और उसकी जो जीवन शैली है, उसमें ये दोनों देव पुरुष कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते ही हैं। अभी आप ये कह रही थी कि लोक नृत्यों को अगर आप देखते हैं तो उसमें एक सामूहिक चेतना काम करती है और उसमें एक अलग किस्म का एक स्वच्छंदता का प्रवाह है। जी, और शास्त्रीय नृत्य जो है वो थोड़ा अनुशासन के साथ में आगे बढ़कर और एक परिष्कार उसका होता है, तो शास्त्रीय नृत्य होता है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, उमा जी आप भी उसमें जुड़िए और बल्कि थोड़ा सा मुझे भी साफ करिए मेरी धारणा को, कि चाहे लोक नृत्य हो, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे जनजातीय नृत्य हो, दरअसल सबसे बेसिक बात है नेचर। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, जो प्रकृति में बाहर है वो हमारे भीतर है। तो वो तमाम प्रभाव जो प्रकृति में बाहर है वही हमारे भीतर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नृत्य वो दरअसल प्रकृति के प्रति धन्यता यानी कि कृतज्ञता का और आभार का ही दरअसल पूरी पूरी अभिव्यक्ति है। डेफिनेटली, जरूर जरूर, आप एकदम सही बता रहे हैं एंड आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू, क्योंकि यही अपने आर्ट्स हैं, यही अपना नृत्य है। जैसे आपने बताया कि कभी हम शब्दों से नहीं बोल सकते कि मुझे क्या हो रहा है अभी, ये कोविड, चलो ना, अभी के जो सिचुएशन है कोरोना जी की, जहाँ पे अंदर से सब डिस्टर्ब्ड है। अभी आप हम लोग जुड़े उसके पहले ही मुझे न्यूज आई, हमारे बहुत फैमिली क्लोज फैमिली में यंग बच्चा गया अभी कोविड में। तो अंदर से इतना टूट जाते हैं हम, मगर ये जब वो ग्रीफ या वो दुख भी हमें डांस से दिखाने को पॉसिबल, मतलब you feel like expressing that grief also through dance, which we have seen because that is the way we are. तो नेचर ने हमें जो भी दिया, अच्छा सही गलत बुरा, वो हमारे नृत्य या कोई भी कला में जुड़ता जा रहा है और वही हमें आशा भी देता है, निराशा भी देता है। तो जिस तरह से सिचुएशन होती है उस तरह से हमारा आर्ट, अभी देखो सभी हम लोग डांस जैसी चीज हम ऑनलाइन सिखाना इतना मुश्किल है, मगर हम कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा ध्येय है कि हम नेगेटिव ना सोचे या हम जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहे, एक दूसरे के साथ रहे। और हम तो ये तो मेन क्रक्स है हमारा कि हमने झाड़ हिलता हुआ देखा तो हमें लगता है वो झाड़ नाच रहा है, एकदम अच्छी खुशबू आई फूल की, फूल झूम रहे हैं, तो वो ही तो नेचर है। तो हम अगर क्लासिकल में करेंगे तो वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा, हम अगर फोक में कर रहे हैं तो कंट्रोल का सवाल नहीं, क्योंकि कंट्रोल की जरूरत नहीं है फोक में। तो गलत कुछ भी नहीं है, मगर सही है जो अपने तरह से अपने ढांचे में सही है दोनों। यस उमा जी, हम लोग अगर इन तमाम शास्त्रीय नृत्यों को देखें और लोक नृत्यों को भी, तो कि
तो पैरेलल है, एक तरफ पूरा लोक नृत्यों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास पूरे भारत के राज्यों में दिखाई देती है, और एक तरफ शास्त्रीय नृत्य भी है। अगर अभी अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक रीजनल अफेक्शन के साथ में जो नृत्यों की शैलियां बनती हैं, देखिए जैसे मान लो हम मणिपुरी की बात करें, तो मणिपुर में जो मणिपुरी नृत्य है वो बरसों पहले तो वहां का लोक में ही प्रचलित नृत्य रहा, लेकिन सर अब उसे उसको बहुत सालों तक उसे क्लासिकल के इसमें लिया ही नहीं गया था। पहले सिर्फ तो मैं 4 डांस स्टाइल थी, क्योंकि जी उसका रीजन ये था, मतलब हम जो सुनते हैं कि क्योंकि पूरा मणिपुरी करता था, और वो भी इवन मंदिर में जाएंगे तो भी इतना इलेबोरेट उनका जेस्चर्स होते थे जैसे वो मणिपुरी में करते हैं। तो ऐसा एक माना जाता है कि क्लासिकल is always performed by selected few, और folk is something which belongs to the whole community. तो उसके वजह से even मोहिनीअट्टम for a long time was not in the list of classical dance styles because it was not accepted. It was I mean, so ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं। मणिपुरी में मुंह ढका हुआ रहता है चेहरा, उसका रीजन भी यही है कि भगवान के साथ हम नखरे नहीं कर सकते, मतलब चेहरे की जो हाव भाव है ना वो ज्यादा नहीं कर सकते भगवान के साथ। अगर हम साउथ की स्टाइल देखें, भरतनाट्यम, वो तो पूरा मुखजाभिनय ही है, या कथकली या मोहिनीअट्टम देखें तो वो पूरा मुखजाभिनय से भरा हुआ है, तो वो भी तो टेम्पल आर्ट्स ही रहे हैं फिर भी उसमें। तो ये जहां से निकली हुई कला है, वहां की जो धाराएं रही है, धारणाएं रही है, उसकी वजह से ये सब रहा है। मगर उसका जब हमें उन्हें शास्त्रीय प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल कि ये शास्त्रीय स्टाइल है, तो उससे हमें कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र से जोड़ना या कोई और टेक्स्ट, मगर एक जनरल जो टेक्स्ट है वो नाट्य शास्त्र है। तो अगर हमें उसका वो संशोधन करके हमें एक एक चीज कि बाबा ये हमारे जो पदचलन है वो ऐसा है या इसका ऐसा, ऐसे कर करके उसे क्लासिकल में लिया गया है। जी जी जी। देखिए अभी आप मणिपुरी की बात कर रहे थे तो मुझे एकदम से कौंधा, और आपने भरतनाट्यम की बात की। देखिए ओडिसी जो है वो बरसों पहले गोटीपुआ हुआ करता था। तो जी, तो उड़ीसा के मंदिरों में जो गोटीपुआ नृत्य होता था, और जिसे कि किशोर वय के लड़के करते थे। देखिए खास बात थी कि उसमें इस समय स्त्रियां उसको नहीं करती थी, फीमेल का लड़कियां नहीं था। कर पाती थी, लड़कियां नहीं कर सकती थी, इसीलिए हाँ, तो हाँ जी बोलिए जी, सर। तो गोटीपुआ आगे जाकर जो है वो ओडिसी में कन्वर्ट हुआ, जिसको हम ओडिसी नृत्य कहते हैं। तो ये जो आपने बताया कि, लेकिन गोटीपुआ को अगर हम देखें, जब कई बार हमारे यहाँ गोटीपुआ का परफॉर्मेंस भी हम लोग लोक रंग और इस तरह के बड़े मंचों पर होता है, मैं देखता हूँ कि मुझे वो कहीं से लोक नृत्य नजर नहीं आता। वो भी इतना सुगठित है, इतना अनुशासित है, लय ताल और संगीत में इतना शानदार बंधा हुआ नृत्य है कि लगता ही नहीं कि हम ओडिसी को और गोटीपुआ को अलग अलग करके देखें। नहीं, एक्चुअली वही हम लोग बोल रहे थे जब हमने शुरू किया कि क्लासिकल इतना जुड़ा हुआ है, पैरेलल है। हम कहीं ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे क्लासिकल फोक खत्म हुआ और यहाँ पे क्लासिकल शुरू हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन अगर आप मूवमेंट्स भी देखें, ओडिसी की तो त्रिभंगी और वो सब उसी में भी दिखती है, तो वो वही मैं बोल रही थी कि गोटीपुआ में भी त्रिभंग दिखता है, या जो भी बेसिक एक ढांचा है, इवन उनका कॉस्ट्यूम और वो सब भी ओडिसी डांसर की तरह ही होता है, तो वो हम कहीं अलग ही नहीं कर सकते। मगर फिर भी डेफिनेटली जो ओडिसी को स्टेटस मिला वो कहीं ना कहीं नहीं मिला गोटीपुआ को, या वहां से निकला इतना ही एक रियलिटी एक्सेप्ट हुई, मगर वो कहीं ना, आई डोंट थिंक इट इज इवन लेसर देन ओडिसी। नहीं वो तो ठीक है, चलिए। हालांकि हमारे यहाँ ये तो तय है कि जैसे हम मास और क्लास को डिफाइन करके देखते हैं तो उसी तरह से बात होती है। सर मैं हमेशा मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि मतलब फोक तो मुझे बहुत पसंद है, मगर फिर भी अगर हम क्लासेस और मासेस की बात करें तो कोई हो, हमेशा
classes is different. वो it's like Nasiruddin Shah, and when you come to masses, it is going to be somebody like Govinda. That is how I sometimes give. They are not, none of them are lesser. मैं कहीं, because they are both artists and they are both reverential, but फिर भी वो एक फर्क है, मास और क्लास का एक फर्क है सर। उमा जी, यहाँ पर एक बात जो अचानक कौंधी मेरे को, वो ये है कि देखिए, लोक नृत्यों का सुगठित रूप देखें हम, या जैसा भी रूप उनके पास कभी कोई गुरु नहीं रहा, उनकी परंपरा ही उनका गुरु रही है ना, और परंपरा से ही वो सीखते आए। कोई घोषित गुरुकुल उनका नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई प्रशिक्षण अभ्यास का कोई केंद्र उनके पास कभी नहीं रहता है। लेकिन हमारी शास्त्रीय शैलियों के पास गुरु शिष्य परंपरा यानी गुरु परंपरा का होना बहुत अनिवार्य रहा। ये गुरु का होना और गुरु का नहीं होना, इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आप लोक और शास्त्रीय नृत्य के बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मुझे हमेशा लगा है ऐसे कि शायद जब शास्त्रीय एक बाजू में उसकी जब ग्रोथ हो रही थी, तो गुरुओं ने भी शायद थोड़ा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया फोक को या लोक कला को, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि हम अपने ही चीज को चलाते रहे, उसमें गलत कुछ नहीं है, मगर उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया। या हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो भाई क्लासिकल डांसर है, आई डोंट डांस फोक। So I've seen people talking like that, even classical dancers. So somewhere we only have made this distinction and we have felt we have created this divide. मगर हम जब यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं ना, तो शहरों के लोगों को सीखना पड़ता है वो फोक भी, क्योंकि वो ऐसे अभी आजकल की मेट्रोपोलिस में अपना कोई कल्चर ही रहा नहीं, इतना मिक्सचर, इतना खिचड़ी हो गया, तो वो सीखना पड़ता है। मगर एक चीज है कि ऐसा माना जाता है कि फॉर अ महाराष्ट्रियन लावणी इज इजीली पॉसिबल बिकॉज वो डीएनए में रहती है अपने, या फॉर अ गुजराती गरबा इज वेरी, इट कैन बी वेरी इजी, क्योंकि हमारे डीएनए में जो हम जिस जगह से हम उपजे हैं उससे हमारा इतना नाता गहरा है कि वो डीएनए में अपने है। थोड़ा सा उसको छुआ ना कि स्टार्ट्स कमिंग ऑन द सरफेस। सो मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि शायद कहीं ना कहीं गलती हमारे गुरुओं की रही है, या कहीं ना कहीं वो स्टेप मदरली हो गया कि उसको जरूरत नहीं है तो लोगों को आ ही जाएगा, क्योंकि वो उनका ही है, ऐसी सोच शायद रही होगी। और अभी आज देखो कहीं पे भी स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग नहीं है फोक के लिए, और वो दुख की बात है। वी आर ट्राइंग टू रिवाइव। नालंदा में हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं आज तक, तो अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के फोक डांसेस को हमने लिया है, मगर मेरी बहुत इच्छा है कि पूरे अपने देश के सभी शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य आने चाहिए, यहाँ पे सब सीख सके, हम सब एक जगह पे बैठ के पूरे अपने देश का आर्ट सीख सके। और ये तो मेरी बहुत इच्छा है कि नालंदा के बच्चों को या किसी को भी सीखना है, आप आओ सीखो। मैं भी, मेरा बस चले तो मैं भी उनके साथ डांस करने लगूं, इतना मुझे पसंद है ये लोक नृत्य। जी जी। उमा जी, अभी आप ये बात कर रही थी कि लोक नृत्यों को बुलाएं और उनको करें। देखिए, ये जो आदान प्रदान लोक और शास्त्र का भी लेकिन आपस में होता तो रहा ही है। कई बार ऐसा होता है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है किसी चीज का आजकल, मतलब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन लेने जाएं तो बहुत कम। ये हमारी एक, शायद ये भी एक अपनी कहीं ना कहीं एक सोच है, शायद एक कलाकार की वजह से ये मैं भी बोल रही हूँ कि आज जब हम नैक में जाने वाले हैं सर, डॉक्यूमेंट्स निकालने बहुत मुश्किल है। हमने 10 परफॉर्मेंसेस किए हैं, 20 परफॉर्मेंसेस किए हैं, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, तो आज हमें वो सब करना। तो ये शायद कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, सिखाया गया है, सब कुछ है, मगर कहीं ना कहीं उसे वो सोच ही नहीं रही। शायद ये क्लासिकल में नहीं हुआ, जिन्होंने उठाया उस बीड़े को उन्होंने ऐसे उठाया कि उसको, अभी देखो जो भरतनाट्यम था वो देवदासी ट्रेडिशन से निकला, वो बहुत ही
मतलब जो अभी जो हम देखते हैं उसका फॉर्म, वो 4 जो तांजौर ब्रदर्स थे, चिन्नैया पोन्नैया वडिवेलु शिवानंदन, तांजौर क्वार्टेट जिन्हें बोलते हैं हम, उन्होंने उसे पूरा शेप दिया कि पहले कौन सा आइटम करना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लास्ट क्या होना चाहिए। तो ये सब एक कॉन्शियस एफर्ट था लोगों का। तो ये तो सही है, और वो फोक को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। जरूर चीजें हुई मगर उस, हाँ सर। उमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप तो जानती हैं कि हमारी जो रंगभूमि है, हमारा जो रंगमंच है, ये सब प्रयोग की भूमि है और इसमें प्रयोग हमेशा होते रहे हैं। और प्रयोग के आधार पर ही हमारी हजारों साल की परंपरा बहते 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 यहाँ तक आई है, और उसमें थोड़े थोड़े से परिवर्तन दिखते हैं। मुझे एक चीज याद आ रही है और मैं आपसे वो जरूर शेयर करना चाहता हूँ इस वक्त, और बल्कि हमारे प्रतिभागियों से, कि लगभग 1 दशक पहले, 10 साल पुरानी बात है। कुमुदनी लाखिया जी, आप सब जानते हैं कि कथक की एक बहुत बड़ी नृत्यांगना है कुमुदनी जी। तो कुमुदनी जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने, कल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रस्ताव भेजा और ये कहा कि आपकी कथक शैली में हम चाहते हैं कि जो राजस्थान का जो लंगा और मांगणियारों की जो गायन की परंपरा है, जिसमें वे ऋतुओं के गीत गाते हैं, तो उन ऋतुओं के गीत होंगे और आपको कथक शैली में उनको करना है। और संयोग ऐसा हो, उसका नाम सीजन्स हम लोगों ने दिया था और उसकी स्क्रिप्ट लिखने का काम मुझ नाचीज को मिला था। क्या बात तो है, नाचीज नहीं। जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगभग 1 महीने की वर्कशॉप हुई थी भारत भवन में, और हम लोगों ने ये काम को किया था। मैं दरअसल अभी अचानक कौंधा तो कह रहा हूँ कि हमारे पास प्रयोग की जो जमीन है वो बहुत खुली है। हम तय क्या कर रहे हैं, हम कैसे कम्युनिकेटिव ज्यादा बना रहे हैं हमारी शैलियों को, ये हमारी रचनात्मकता पर बहुत निर्भर करता है। तो आप जैसे लोग जो इतनी गहरे सब रिसर्च करते हैं और नई जनरेशन को भी देख रहे हैं, और नई पीढ़ी में कितना मादा है काम करने का, ये सारी चीजें मिलकर तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आपका जो महाविद्यालय है वो मुंबई में रहकर पूरे देश के लोक शैलियों के बारे में सोच रहा है और नया सोच रहा है। तो क्या ऐसी कोई कल्पना आपके भीतर जागती है जैसे कुमुदनी जी ने की थी? सर हम तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वैसे भी करते हैं, आपको शायद पता ही होगा क्योंकि आप कनक जी से जुड़े हुए हैं। जी जी। हमारा सिर्फ एक ही चीज है कि हम बहुत ही नाट्य शास्त्र लॉयलिस्ट रहे हैं। तो इट्स आल्सो कमिंग फ्रॉम कनकवन ऑफ कोर्स, बिकॉज वी फील, क्योंकि नाट्य शास्त्र की तरह हमें सिर्फ हम वही करते हैं जो नाट्य शास्त्र हाँ बोलता है। और जैसे आपने कहा फोक संगीत के साथ, तो हमने पृथ्वी आनंदिनी ऐसे करके जो डांस ड्रामा किया था, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, उसमें हमने ये चीजें हमने फोक डांस के साथ जुड़ाई थी। मतलब क्लासिकल तो था ही था क्योंकि वो तो हमारा फोटे है, क्योंकि भरतनाट्यम, कथक और मोहिनीअट्टम ये तीनों मिलके वो भी थे, और हमारे ही स्टूडेंट्स फोक भी इतना अच्छा करते थे, तो उन्होंने बिहू किया था। तो आप जो बोल रहे हो ना कि ये हमें कॉन्शियसली साथ में लाना है, ये जो है ना लोक कला, एक चीज है कि वो कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है, और हम अपनी तरह से ट्राई करते हैं कि जितना हमारा हो सके, जितना हम अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के जितना हम एनरिच करें इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग ट्रेडिशनल वो प्रकृत गाथा सप्तशती को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देते हुए, हालांकि जितना कि हम आज के कलाकारों की क्रिएटिविटी को दाद देते हैं, वो तो देना भी चाहिए सर। और सीजन्स की आपने बात कही, तो ये सब एक ही चीज का थॉट प्रोसेस है जिसे हम किस तरह से बिल्डअप करते हैं, वो एक वही तो क्रिएटिविटी है, वही तो मेन है। सो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ सर जी। आपको कैसा लगता है कि अब हम जिस मुहाने पर हैं, और जहां पर कि ये तो आप मान के चलिए कि पहले जो कलाओं के आसपास घिरने वाले जो रसिक होते थे, जो दर्शक होते थे, उनके पास में एक कलाओं को अप्रिशिएट करने का भी, उनके अप्रिशिएशन का भी उनके पास में कहीं न कहीं एक अलग किस्म का संस्कार हुआ करता था। इतनी बेचैनियाँ नहीं थी, इतना अतिक्रमण नहीं था हमारे जीवन में, और वो लोग 2-2 3-3 घंटे तक जो है सारी चीज़ों को देखते थे। क्या आपको ऐसा लगता है आजकल तो ये मान के चलिए कि 3 घंटे की कॉन्सर्ट शायद
कोई भी कह सकता है कि ओ हो 3 घंटे तो नहीं, मतलब किसी का भी धैर्य जो है 1 डेढ़ घंटे के आसपास चुकने लगता है, चाहे वो नाटक की प्रस्तुति हो, चाहे मतलब शुभा मुद्गल जैसी गायिका जब आती हैं तो वो भी कहती हैं कि भाई देखिए 1 सवा घंटे में खत्म करें। वो 1-2 लोग ही होते हैं जो फरमाइश भेजते हैं, बाकी सारे लोग जाना चाहते हैं। तो वो मतलब बोलते हैं कि बी प्रैक्टिकल नाउ। तो आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों के आसपास जो घिरने वाली हमारे जो कला प्रेम है, जो रसिकता है, जो एप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, इनको भी बचाए रखने के लिए अब बहुत सुगठित और कम समय की लेकिन बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, आपको ऐसा लगता है? सर सहृदय होना जरूरी है, ऐसा अभिनव गुप्ता ने भी कहा है। और आजकल वो सहृदय ही मिलता नहीं है। तो प्रॉब्लम मैं किसकी कहूँ, इस चीज की कहूँ या किसकी कहूँ, मुझे समझना नहीं है। भले वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉल, वी आर एबल टू रीच एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बट एक जो शायद जो हम पहले संस्कार करते थे अपने बच्चों पे कि यू नो अच्छा लिटरेचर, अच्छी आदतें, अच्छा पढ़ना, या ये सब जो था ना, वही थोड़ा थोड़ा लुप्त हो रहा है। इसकी वजह से ये हो रहा है, वो बात सही है, मगर इतना भी बुरा नहीं है। शायद मैं बहुत आशावादी हूँ कि क्लासिकल में, हाँ, हम जो पहले 1 घंटे का वर्णन करते थे भरतनाट्यम में, मतलब पहले के जमाने में, वो अभी 20 मिनट का हुआ है, ये बात सही है। मगर इतना भी बुरा नहीं है कि आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अ पर्सन। आई थिंक अगर इट इज अप टू एन आर्टिस्ट टू होल्ड, जैसे शुभा जी जैसी हैं, वो सही बात बोल रही हैं, मैं नहीं हूँ, आई एम नोबडी टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि इफ यू गिव द राइट कॉन्कॉक्शन, राइट मिक्सचर ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो लोग हैं, कम हैं मगर हैं। और फिर वापस वो क्लासेस और मासेस की बात आती है। गांवों में भी आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, तो क्या है, कहीं कहीं क्या चीज उन तक पहुंचती है या क्या चीज हम तक पहुंचती है, वो भी मायने रखती है। कहीं ना कहीं वी आर ओनली नॉट वांटिंग अपने ही बच्चे आज घर में, मतलब मैं सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं कर रही, मगर इन जनरल अगर हमें उन्हें सिखा रहे हैं क्लासिकल डांस, तो हमें उनको पूरा माइथोलॉजी समझाना पड़ता है, क्योंकि घर से कोई समझाता नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। अगर जी, मुझे जी। शिवा के बारे में मुझे सिखाना है, तो मुझे बोलना पड़ता है कि शिवा के हाथ में त्रिशूल है, शिवा ये है, विष्णु मतलब कृष्ण मतलब ये है, ये मुझे बताना पड़ता है। जबकि हम जिस जनरेशन से आए हैं, वो हमें किसी ने सिखाया नहीं, वो मतलब सिखाया, कॉन्शियसली नहीं सिखाया, ऐसे मैं बोलूंगी। वो कहीं ना कहीं वो रूढ़ी चीजें अब वो आती रही और हम ग्रो होते रहे। या अच्छा क्या है, अच्छी चीज क्या है, वो समझना भी एक, मतलब श्रेयस और प्रेयस की बात करें तो ये समझना भी जरूरी है। तो शायद कहीं ना कहीं अपनी गलती है, ऐसा मुझे लगता है कि हमने नई जनरेशन को ये अच्छा दिया नहीं, हमारी गलती है। इट इज आवर फ्लॉ that we have हाँ, not given them the best, so that they understand the best, and so that they remain you know probably I would say loyal to our country. They will stick to our ideals. I think it is somewhere our mistake, I feel. उमा उमा जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जैसे कि कहते हैं कि संभावना कभी मरती नहीं है, वो क्षीण भले ही हो जाती है, कमजोर भले ही होती है, लेकिन मरती नहीं है। देखिए हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है और उसमें जो हम लोग टैगोर विश्व कला संस्कृति केंद्र और हमारे तमाम नए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अभी सुन रही थी। मुझे ही जी, तो भाषा, हम लोग मुझे ही एनरोल करना चाहिए आपके लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में, ऐसे लग रहा है। हम लोगों ने इतने सारे प्रयोग किए और देखिए संस्कृति के साथ शिक्षा को जोड़ने के लिए जो हमारी भारत सरकार भी बात कर रही है नई शिक्षा नीति में। और हाँ, न्यू एजुकेशन बहुत सुंदर, आप जो बहुत। कह रही हैं नई पीढ़ी को इस तरह से संस्कारित करने की जरूरत है, और आपका महाविद्यालय भी जैसा कि आप कोशिश लगातार कर रही हैं। और आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाना शुरू किया, तो उमा जी हम लोगों ने 2-3 साल पुरानी बात है, जब हमने टैगोर की प्रणति का एक उत्सव शुरू किया, तो उसमें हमने भोपाल की क्षमा मालवी जो कथक की नृत्यांगना है, और श्वेता जो कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, इन दोनों हमने प्रतिभाशाली युवा नृत्यांगनाओं को एक प्रोजेक्ट दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि की जो पोयम है, उनको आप बिल्कुल आपके यहाँ जो सीखने आ रही हैं नृत्यांगनाएं, जो शिष्य आ रहे हैं, उनके साथ तैयार करें।
तो उन्होंने भरतनाट्यम और कथक शैली में टैगोर की लगभग 1 दर्जन कविताओं के साथ में उसकी कोरियोग्राफी तैयार की। और उषा गांगुली जी सुपर। जी, तो ये भी संभव हुआ, ये भी किया कि वो छोटी छोटी सी बच्चियां टैगोर को समझें, टैगोर की कविताओं को समझें, और किस तरह से भरतनाट्यम और कथक शैली से गुजरते हुए हमारी जो लोक शैलियां हैं उनको भी आत्मसात करते हुए पूरा का पूरा एक फ्यूजन, एक रूपक तैयार हुआ। तो वही मैं आप जो बोल रही हूँ सर, अपने हाथ में है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे उनको हम कैसे मोल्ड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी गलती, अगर बच्चे आधे घंटे में उठना चाहते हैं डांस प्रोग्राम से, ऐसे मुझे लगता है बड़ों की गलती है कि उन्होंने कभी ये सब दिखाया नहीं या समझाया नहीं। तो आई विल ऑलवेज से कि इट इज द एल्डर्स फॉल्ट फॉर नॉट ग्रूमिंग द चाइल्ड, नॉट मोल्डिंग द चाइल्ड। तो आपने जैसे कहा कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी रविंद्रनाथ जी के, टैगोर जी के पोएम्स कर रहे हैं, मतलब कविताएं कर रहे थे। तो यही तो है, यही तो देना है हमें। मॉडर्न बनो, जरूर बनो, मगर उसके साथ अपने रूट्स छोड़ना वो गलत है। उसे भी उतना ही प्यार करो, वो बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है। मैं कब से हम शिवा और कृष्ण की आपने जब शुरुआत की, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ये मेरा टैटू शेयर करूं, जिसे मैंने नाम दिया है क्या बोलते हैं, नरहरि। नरहरि, नरहरि, मतलब हरिहरा, सॉरी, हरि एंड हरा, they are the root of everything, and I feel we cannot be away from these. आप मानो तो एंटिटीज, आप मानो तो भगवान, जो भी मानो, यू नो, द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज अवर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम भी अभी देखो सर, हम भी अभी बीच में रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम, जो एक कविता थी, मैंने भी वो फ्री डांस स्टाइल में किया, कोई भरतनाट्यम नहीं स्टैंडर्डाइज, वो फ्री था, जो भी फील हुआ वो किया। तो दैट इज व्हाट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। जी। तो उमा जी, ये बात तो तय रही कि अतीत, आज और आगत, है ना, जैसे कि बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, यदि तीनों के साथ एक तारतम्य हम जोड़कर चलें, तो निश्चित रूप से हमारा जो साउंड है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी कलाओं का, खासकर मुझे लगता है कि शायद वो बहुत हर समय में बहुत मौजूद रहेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। जी 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 सर, जैसे वो माला के मणि दिखते और अंदर का धागा, ये जो अपनी ट्रेडिशंस है ना, अगर हम ये नहीं संभालेंगे, उसको जोड़ के नहीं रखेंगे, तो वो नहीं रहेगा, वो अपने हाथ में, ऐसा मुझे बहुत लगता है। जी। पर उसमें मुझे लगता है उमा जी, एक बात ये भी है कि हमें बहुत खुला मन रखने की भी आवश्यकता है। मतलब कई बार संकुचित मन वाले हैं हम, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि जी। अभी देखो, सही दूसरी एक रियलिटी भी बोलूंगी मैं, कि जब हम साउथ में जाके करते हैं भरतनाट्यम फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है कि ये तो साउथ, शी इज नॉट अ तमिलियन, ये एक है, ये प्रॉब्लम है। वी आर वेरी नैरो माइंडेड, किसी और ने किया तो ये सही नहीं है, मैं करूं तो सही, ये भी है प्रॉब्लम। बहुत संकुचित मन वाले हैं, वो तो अपना प्रॉब्लम है, पहले भी था, आज भी है। जी जी। और ये तो देखिए, लेकिन जो कहते हैं ना कि नदी की तरह हमें रहना चाहिए, हमें तालाब की तरह नहीं होना चाहिए। तो सरोवर का पानी तो एक जगह होता है, और नदी जो है वो तमाम पुल के किनारों को तय करती हुई आगे बढ़ जाती है, और उसके किनारों को हम फलता फूलता देखते रहते हैं। तो हमारी परंपराएं भी नदी की तरह ही हैं, हमारी ट्रेडिशन सारी। और उसमें जितना, जैसे जिस खुलेपन की बात हम आपसे अभी कर रहे थे, कि जितना खुलापन होगा ना प्रयोग के लिए, उसमें हमेशा एक स्पेस बना रहे। प्रयोग के लिए स्पेस रखना बहुत जरूरी है। प्रयोग करना ही चाहिए, मगर हम किस तरह से करते हैं। अभी देखो, मैं जैसे आई डिविएटेड फ्रॉम द अर्लियर आंसर, जैसे मैंने कहा कि हम लोग बहुत भरत लॉयलिस्ट हैं नालंदा में, और वो भी बिकॉज कनक जी की वजह से वो हमारे दिमाग में है कि बस हम तो, अगर अकॉर्डिंग टू भरता हम कहीं भी कॉन्टेम्पररी चीज नहीं दिखा सकते स्टेज पे अकॉर्डिंग टू भरता, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो अपना बायस दिखता है या प्रेजुडाइज दिखती है। तो इट्स बेटर कि हम एक स्पेक्टेटर की तरह उस चीज को पेश कर सके, नॉट बायस।
तो हमने ये कनक जी से सीखा है कि जब भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन की बात हो, या हम आजकल बोलते हैं एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, या जो भी बोलते हैं, मैं तो बोलती हूँ हमारे यहाँ तो औरतें शक्ति ही कही गई है। जैसे आपने अभी भी कहा कि उमा या पार्वती ने लास्य दिया, तो वी हैव नो क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलती हूँ विना शक्ति शिवा शवः। अगर हम बोलते हैं तो बिना शक्ति के तो शिवा भी नहीं है, तो बिना प्रकृति के कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम ये सब कहें तो मुझे ऐसे लगता है, तो उनकी एक शायद आपने देखी होगी, मुझे पता नहीं है, उनकी एक आइटम है मोहिनी आट्टम में कुब्जा, जो कि कुब्जा के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है ऑब्वियसली। और उसमें उसका जो पीछे का जो हंच है उसे शी इंटरप्रेट्स एज द एक्सप्लॉयटेशन। वो बोझ जो है ना, वो उसका रूढ़ियों से, जो परंपरा से जो एक औरत को एक्सप्लॉयट करने का जो चला रहा है वो है। एंड कंस भी, और ये जब आइटम हुई, मेरी शादी के बाद ये सब आइटम्स हुई, और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव सीन दिस न्यू items coming up in our house. तो उस जमाने में जब ये आइटम उन्होंने की, तभी जळगांव का सेक्स स्कैंडल हुआ था यहाँ महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे जिन्होंने लड़कियों को तंग किया था वो इन्वॉल्व थे। सो शी ऑलवेज टेल्स कि जब मैंने वो सब पेपर में पढ़ा, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि ये क्या, what is going on? How do I express my grief as an artist? How do I show? तो उन्होंने ये आइटम क्रिएट की जहाँ पे वो वही, मतलब there is faith in God, faith in purity, faith in that higher entity which ultimately brings you out and gives you the hope of everything, life. So उन्होंने ये नया एक, मतलब हम वी बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अगर मुझे कोई भी करंट सिचुएशन दिखानी है तो वो कहीं ना कहीं मेरा एक नजरिया दिखेगा जो शायद सही ना हो, तो उसे हम कहीं पास से लिंक करके उसी के ऊपर हम अगर डेवलप करें तो हम उस चीज को हमारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम इस प्रथा से आए हैं जहाँ पे हम करंट चीजों को कैसे माइथोलॉजी से लिंक करना, कैसे अपने पुराणों से लिंक करना, और उसी चीज को टच करके हम कैसे अपना जो भी फीलिंग हो दिखा सकते हैं, वो हम ऐसे सीखे हुए। तो मुझे लगता है ये सब चीजें भी बहुत जरूरी है, शास्त्रों को समझना, उसको अपने क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, कैसे करना, ये सब भी बहुत जरूरी है। उमा जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आप एक्सपेरिमेंट की बात करती हैं, इनोवेशन की बात करती हैं, तो हमारे वक्ती दौर में बहुत सारे ऐसे डांसर्स रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान मनीषी भी रहे जिन्होंने इस तरह के काम किए। अब देखिए, मैं 2 मिसालें आपको देता हूं और आपकी राय जानना चाहूंगा उस पर। अस्ताद देबू, आप जानती हैं कि अस्ताद देबू आए हैं, अभी नहीं रहे, पिछले कोरोना के समय में नहीं रहे वो। और उसके बाद चेतना जालान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। और हमारे कंटेम्प्रेरी डांस सीन में जो है वो, इनको हम बहुत ही इनोवेटिव डांसर्स के रूप में मानते हैं। लेकिन बहुत समय तक इन लोगों को ही, अपने ही वक्त के बहुत सारे नर्तकों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने और क्रिटिक्स ने इनको खारिज किया। सही बात है ना, वो गलती। जी, बिल्कुल कहा कि नहीं, एक आप क्या कर रहे हैं। अब हमारे साथ 2 चीजें आती हैं हमारे आर्ट से। ये आप फोक की बात, अगर लोक कला की भी बात करें ना, तो यही हुआ है, लोक कला के साथ भी यही हुआ है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कंटेम्परेरी डांसर्स या सो कॉल्ड मॉडर्न डांसर्स, अस्ताद जी के जैसे, कहीं हम नहीं समझ पाए, मगर हमने उनको ही बाजू पे, हमने उनको उतार दिया, ये रहा। जी, इसमें 2 चीजें आती हैं उमा जी। एक आता है कि दरअसल हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई काम करते हैं, अपनी रचना धर्मिता नई कैसे हो और अपने चिंतन को हम रखते हैं। एक वो होता है जब आप प्रदर्शनकारी कलाओं के साथ में जब मास से इंटरेक्शन करते हैं, जब जनता के बीच में आप जाते हैं, तो 2 छोर आपके क्रिएशन के होते हैं। एक अपने लिए होता है जिसमें आप करके सुख महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। एक वो है जो जनता के बीच चुनौती की तरह ले जाते हैं।
तो अब ये दो छोर पर काम करना मुझे लगता है शायद नहीं किसी सर, के लिए वही तो टाइट रोप वॉकिंग जैसा ही चीज है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमने वही सीखा है उनसे कि आप कितना मसाला डालते हैं और आप किस तरह से अपना पेश करते हैं। भरत ने भी रस सूत्र में कहा है, या उनका रस का डेफिनेशन ही ऐसा रहा है जो खाने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अन्न इस पूर्ण ब्रह्म। तो वो रसास्वाद के लिए हम किस तरह से किस चीज को कहाँ मिला रहे, वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। उन्होंने किया, बहुत सुंदर किया है। मार्था ग्रैम भी थी अब्रॉड, contemporary, she was a modern dancer, so she never agreed to that rigid ballet atmosphere, but उसका मतलब she was also very well known, but वो क्या होता है सर, वो उसके बाद वो अटक जाती है, वो परंपरा नहीं बन पाती, क्योंकि वो इंडिविजुअल जब तक है तब तक वो होता है, फिर उसके बाद वो उतरती नहीं है नीचे। वेरएज ये अगर शास्त्रीय कला का देखें तो एक के बाद एक गोज ऑन, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज है कि अभी आस्था जी थे बहुत क्रिएटिव, जबरदस्त, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पर उनका कोई स्टूडेंट जो उनके लेवल का आ सके या फिर आगे चलता रहे, वो रूढ़ी बन जाए, वो बहुत जरूरी, वो भी एक जरूरी है मुझे लगता है। जी 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 जी। उमा जी, बातें बहुत सारी करने को है और मेरे मन में इतने सवाल है, और फिर आप इतनी अधिकृत ढंग से इतने अच्छी आप सवालों के जवाब दे रही हैं, तो मेरे पास सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन वक्त का तकाजा है। हम लोग लगभग 1 घंटे के आसपास पहुंच गए और हमारे बहुत सारे प्रतिभागी, जैसा कि विशाखा ने इशारा भी किया था शुरू में कि शायद उनके पास कोई सवाल, कोई जिज्ञासाएं हो सकती हैं, आपके सामने रखेंगी और आप यथासंभव उनका समाधान भी करेंगी। तो मैं विशाखा को अब पास करता हूँ। उमा जी, कहते हैं कि बातें रही अधूरी, बिछड़ना पड़ा हमें, आए भी इत्तेफाक मुलाकात की तरह। तो क्या ये बात है सर, थैंक यू सो ये मच। मगर जी, ये ये मुलाकात आज के लिए सीमित मत रखना, मैं जी सबसे बात कर रही हूँ, ये आप, मैं संगीता मैम से भी, विशाखा जी से, सब आप मेरे सामने, और आप विनय जी, ये जी सिर्फ ऐसे ही ऑनलाइन ना हो। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि फिजिकली हम मिल सके, और जी जी आदान प्रदान बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कल भी आपसे बोल रही थी कि मैं जी कोई फोक लोक कला के लिए एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी सुंदर अपनी कला है, उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ अवर, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, लेट मी से, आई एम वेरी प्राउड अबाउट आवर कंट्री, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन. I will not compromise probably in future lives if at all I have. जी Even जी this, इतना. Thank you so much, sir. जी विशाखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि ये जो संवाद है ये यहाँ पर रुके, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार यहाँ पर सवाल हो रहे हैं, और बीच में जो जिस कन्वर्सेशन में आप दोनों बातचीत कर रहे थे, लगातार उसको सुनते रहने का मन कर रहा है। और उमा मैम, जैसा आपने कहा, तो ये दरअसल मुलाकात की शुरुआत का बहाना था। तो अब मुलाकातें होती रहेंगी और होती ही रहेंगी ऐसी उम्मीद के साथ इस मुलाकात को हम यहाँ अंजाम देंगे। कुछ सवाल हम लोग ले सकते हैं, अगर हमारे साथ आज जो साथी जुड़े हैं अगर वो कुछ सवाल करना चाहें तो। मीनवाइल जब तक हमारे पास कोई सवाल आता है, तो मेरा भी एक सवाल दरअसल आपसे था। बीच में आपने एक बढ़िया बात कही थी, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ध्यान बार-बार वहीं जाता है, और कलाओं की तरफ भी मेरा हमेशा से एक आकर्षण भी रहा है। और आपने बीच में बात कही कि वो एक संवाद है दरअसल, जो लगातार हम करते हैं ईश्वर से। तो वो रिचुअल्स के थ्रू हम एक संवाद ईश्वर से कर रहे हैं। तो और आज के समय की भी यहाँ पर कुछ बात हुई थी, विनय सर ने एक सवाल आपसे कहा था। तो आज अगर हम कलाओं को देखें, तो वो एक ईश्वर से तो खैर संवाद है ही, जो प्रैक्टिस कर रहा है आर्ट को उसके लिए तो है ही, लेकिन जो देख रहा है या जो रुचिकर है, जो दर्शक है, उसके लिए वो कैसे एक संवाद का रूप ले सकता है, और संवाद के रूप में वो कैसे उसे मदद कर सकता है, इस पर थोड़ा-सा मैं आपकी विचार मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हम अपनी भारतीय कलाओं की बात करें, फिर वो कोई भी हो, शास्त्रीय हो या कोई भी हो,
मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जो दो अपने सभी कलाओं के एम्स रहे हैं या पर्पस रहा है, एक तो है रसा यू नो रसास्वाद, यू हैव टू गिव रसा टू योर स्पेक्टेटर्स. दूसरा है मगर रसा कभी होता है जब वो हम हमेशा हम प्रेक्षक को हम अगर देखें तो उनका भी एक लेवल होना चाहिए इवोल्यूशन का, नहीं तो वो ऊपर से जाता है. जो आजकल कभी कभी क्लासिकल आर्ट्स के बारे में होता है, लोगों को समझता नहीं है क्योंकि वो जो एक बेस था ना वो लोगों के घर से ही निकल गया है. तो अगर हम ये कहें तो वो रसास्वाद इज द फर्स्ट एम. सेकेंड इज टेकिंग टुवर्ड्स मोक्ष, टेकिंग द बी होल्डर, मतलब आपके प्रेक्षकों को भी आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना है. तो हमारा यही हमेशा आर्ट का आर्ट के जरिए यही हम प्रचार, मतलब यही हम करना चाहते हैं कि एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू टेक द spectators with you in this journey where you lead them towards these two aims. So अगर ऐसा देखा जाए तो मोक्ष has always been very important in our life. मतलब वो उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, जीते जी भी मोक्ष की तरह, मतलब you can be like स्थित प्रज्ञ. बहुत मुश्किल है ये सब बातें करना, इजी है मगर एज एन आर्टिस्ट वो क्यों हो सकता है, क्योंकि हम जो करते हैं ना वो वी आर नॉट शोइंग आवर ओन एक्सप्रेशन, आवर आई मीन वी आर शोइंग आवर एक्सप्रेशन बट वी आर नॉट बिकॉज ऑफ अनुकीर्तन कॉन्सेप्ट. इफ यू टॉक अबाउट नाट्य शास्त्र, हम अनुकरण नहीं करते, तो उसकी वजह से हम जो भी करें तो वी आर फॉर दैट स्पैन ऑफ 10 minutes or 20 minutes or 1 hour 2 hours we are not. For example, I am not Uma when I am on the stage. I cannot be. If I become Uma, then I will not be able to give my best as a patra. So Bharata also says कि patra is the thing from which the rasa overflows. बराबर? तो वो patra is unaffected, but because of patra rasa is overflows. अगर हम ऐसे कहते हैं तो it is we are not us also. जो प्रेक्षक बैठे हैं वो भी अपना आइडियली अपना रोज का प्रॉब्लम्स बाजू पे रख के वो 1 घंटा 2 घंटा आपके सामने glued, he should be glued to what you are doing. Right. It is the artist's caliber which can do. Okay, so both are not at the selfish level. If artist is at this level, the spectators are also brought up at that level. So that is the journey. So you are not selfish both the sides, and that's why you can give this feeling of moksha or feeling of this rasa, and that is very important. That's what we have learned. तो मोक्ष तो जरूरी है. और मैंने शायद वो स्पिरिचुअलिज्म पे जब बोला था, शायद संगीता मैम और आपको पता होगा, मैं तो हमेशा से मानती हूँ कि वो साहिल लुधियानवी जी का गाना था, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या. जरूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन के बैठो तो आप साधु बन गए. एक आर्टिस्ट भी साधु ही होता है. अगर फिर भी आई विल अगेन से देयर इज एन एक्सेप्शन. आई समटाइम्स फील आर्टिस्ट्स आर वर्स्ट इन देयर पर्सनल लाइव्स. ये भी चीज है, मतलब ये ड्युअलिटी जो हम देखते हैं ना वो कांस्टेंट है. तो अल्टीमेटली इवन शिवा नटराजा, इफ यू सी द नटराजा इमेज, अभी इधर पीछे नहीं है, तो आई वाज जस्ट सीइंग, if you see his legs and hands are in motion, his hair is all charo disha mein disheveled hair running. Of course they represent knowledge and all that we say, yes, but his face is completely calm. That shows it's also diabolic thing, but that is what it is supposed to be. Right. So I think that is what is very important as an artist, and that is the crux of our art, I feel. फिर वो फोक हो तो भी वही है. अगर हम अपना फोक डांस भी करते हैं तो वो थोड़े जो समय में हम अपना रोज का प्रॉब्लम भूल जाते हैं, अपने बॉडी एक भूल जाते हैं. अगर मैं सपोज इफ आई एम गोइंग टू डांस गरबा,
तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पैर में सूजन है, मेरे कमर में दर्द है, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ मेरे लोगों के साथ डांस। मैं भूल गई हूँ अपना एग्जिस्टेंस, पर्सनल चीजें मैं भूल जाती हूँ। तो ये दोनों कलाओं में होता है। बिल्कुल, शुक्रिया मैम बहुत। एक सवाल आया है यहाँ पर, हमारी स्टूडेंट है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से, दृष्टि जैन। शी हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। काफी बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, लिखा है, पर उसका क्रक्स ये है कि वो ये जानना चाहती हैं कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, in order to achieve your goal, in order to be practicing Bharatanatyam dancer. आई वुड से वो तो हर एक डांसर के लाइफ में आता है। शायद मैंने कुछ भी नहीं देखा कंपेयर टू व्हाट कनक जी हैज सीन इन हर लाइफ। मतलब जब नालंदा हो रही थी, व्हेन शी वाज इमर्जिंग एज अ नालंदा पर्सन, बन रही थी, तब लोगों ने यहाँ पे ऐसे बहुत अफवाहें, मतलब शी टू गेट इन प्रेस आल्सो सच एलिगेशंस कि शी इज गोइंग टू सप्लाई प्रोस्टिट्यूट्स टू द मिनिस्टर्स, ऐसा। सो ये सब चीजें उन्होंने फेस की, तो मैंने तो कुछ भी नहीं फेस किया। और लकीली जिस घर से मैं आई हूँ वहाँ पे शुरू में ऐसे था, बिकॉज आई एम, देखो अभी ये भी चीज है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ गुजराती फैमिली। इनिशियली इट वाज कि बाबा पता नहीं तुम शादी के बाद डांस कर पाओगी या नहीं, ये एक हमेशा किसी भी माँ को या पिताजी को रहता है। तो वो भी एक था। तो मैंने हमेशा से, मैं उनको कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्या फर्क पड़ता है, you know. So and we had been given that freedom. My eldest sister is not married still. So luckily मुझे बहुत कोहेसिव एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे मैं खिल पाई। और इतना ही नहीं, शादी के बाद भी आई डिड माई मास्टर्स, मैंने PhD किया, तो मुझे घर से तो हमेशा से सपोर्ट रहा है। हाँ, मगर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले विनय जी से कहा कि अगर तमिलनाडु में जाके हम भरतनाट्यम करें तो लोग पूछते हैं कि अरे मगर ये तो तमिलियन नहीं है, तो तभी लगता है कि हाउ डेयर यू से, यू नो। एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी suppose we come on stage or we dance, we are more traditional than those people at times, or we are more what should I say, I'm not comparing, I should not, because I don't believe in comparison, but कहीं ना कहीं we are able to say कि no बाबा हमें भी पता है, ये हमारे देश का एक है कि अरे गुजरात से आई इसको कुछ आता नहीं है, अरे यहाँ से आई इसको कुछ, तो ये चीजों का सामना करना पड़ता है। but I think God has given us that sense कि how to handle everything. घर से तो बहुत सपोर्ट है, whether it is husband, whether it is in-laws, obviously. So my daughter is also performing. So it has been a tradition which is coming in the house. Of course, my son is a sports person, but ये नहीं, मगर अभी मगर हम जब पढ़ रहे थे और आज भी ये चीज एक कॉमन है। आजकल की जनरेशन, हमारे नालंदा के बच्चे जब ट्रेन से या बस से सफर करते हैं, तो अगर ताल करते हैं ट्रेन में, तो लोग उनको देखते हैं, अरे बाबा आप यही ग्रह से आए हुए हो ना, कहाँ से आए हो, ये क्या चल रहा है। सो पीपल डोंट नो ये देयर इज अ सीरियस स्टडी, दे डोंट इवन वांट टू नो। आप बोलेंगे आप डांसर है तो थोड़ा देख के यू नो दे विल थिंक यार ये तो डांसर है, यू नो, ऐसा होता है, इट हैपेंस। बट आई थिंक व्हेन यू ओपन योर माउथ, इफ यू हैव दिस, आई थिंक इट इज इनफ। Ma'am, we have one more question, which is very close to what you just said. Dr. Ruchi Mishra Tiwari has asked, what can we do to promote Bharatanatyam, or for instance, any classical dance form in young generation? So what do you think, what can be done? Ruchi ma'am, I think we are all doing our bit, all of us here, and I have seen एक जमाना था कि जब सीरियस स्टडी नालंदा में करने के लिए we had very less enrollment of students comparatively. हमारा रेशियो भी अलग ही है सिखाने के लिए लकीली, मगर जो हम बाहर देखते हैं, दूसरे फैकल्टी में देखते हैं, वैसे उतना ये नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज वेरी सिलेक्टेड फ्यू कम फॉर दिस आर्ट, बट नहीं, आजकल मतलब हमारे यहाँ एनरोलमेंट में 4, 5, 6 ऐसे होता था, आजकल लकीली इट्स मच बेटर। मुझे लगता है आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस रियलिटी शोज एट ऑल, आई डोंट लाइक देम, मगर कहीं ना कहीं उसकी अगर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखें तो लोगों को आज पता चलता है कि
शास्त्रीय नृत्य में आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, आप उससे कम, अनफॉर्चुनेटली सक्सेस इज वैल्यूड विथ मनी। तो अगर आप पैसे कमा सकते हो आपके प्रोफेशन से तो आप सक्सेसफुल हो, कितना कमा सकते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, बट इट इज अप टू, तो लोग लेते हैं ये प्रोफेशन, और यंगर जनरेशन है। पहले मुझे बहुत एक निराशा सा लगता था कि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, मगर आज ऐसा नहीं है। आई थिंक पीपल आर कमिंग। देखो तो there are a set of kids who want to do something serious in classical arts or classical dance. Thank you so much, ma'am, for answering both the questions. I think we do not have any more questions for today. पर क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा तो हम सवालों के साथ आपके पास बार बार आते भी रहेंगे। जरूर। I hope I hope I can justify your questions. Obviously, ma'am. Obviously, बिल्कुल बिल्कुल. And it was really nice conversation. Feeling very enthusiastic to have one more kind of conversation with you and Vinay sir also. So I think we are at the closing of this session, and I would kindly request Dr. Ruchi Mishra Tiwari, who is the head of School of Languages in Rabindranath Tagore University, to please come up forward for the vote of thanks. Ruchi, ma'am, please. Yes, thank you, Vishakha. Am I audible? Yes, ma'am. We can hear you. Okay. यस, सो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर जो आज हमने एक लोक एवं शास्त्रीय नृत्यों का सांस्कृतिक अंतर संबंध इस पर एक संवाद जो हमने आज देखा, इस सेशन में सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एंड इट्स रियली वंडरफुल, इट वाज रियली वंडरफुल, आई हैव नो वर्ड्स। लेकिन धन्यवाद देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूजिक की जब बात आती है और हमारे देश के जब कलाकार हमारे सामने आते हैं तो हमारा हाथ जो है हमारे कान पर चला जाता है और हम इस तरह से ही उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पर हाथ रखते हुए मैं डॉक्टर उमा रेले मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना ब्यूटिफुली और इतना आत्मीय तरीके से हम लोगों को समझाया मासेस एंड क्लासेस का जो फर्क था, जो डांस की कैसी परंपरा शुरू हुई, और उनका अपना टैटू भी, मैम बहुत खूबसूरत टैटू भी हमने आपका देखा। थैंक यू। सो यस, वाज सो वंडरफुल और बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जैसे विशाखा मैडम ने और सबने कहा कि हम वी विल बी इन टच विथ यू, और हम आपसे बात करते रहेंगे और आप हमारी यूनिवर्सिटी में फिजिकली भी आए और हमारे स्टूडेंट्स को भी हमारे यूनिवर्सिटी में भी डांस एंड आर्ट कल्चर को और प्रमोट करने की भी जरूरत है। उसकी शुरुआत हो चुकी है, सेंटर्स खुले हैं, बट आप आएंगे तो हमें हमारा सौभाग्य होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैम, डॉक्टर उमा मैम, इट वाज रियली वंडरफुल। और मैं धन्यवाद और भी देना चाहूंगी हमारे टैगोर इंटरनेशनल सेंटर के मिस्टर विनय उपाध्याय सर का, जिनकी बहुत ही मधुर आवाज के हम सब फैन हैं और जब भी वो आते हैं मंच पर तो हम ध्यान लगाकर सुनते हैं और उनको सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो कोई भी सेशन होता है तो वी लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू हिम। तो थैंक यू विनय सर, बहुत ही अच्छा संवाद आज रहा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे वीसी सर, वाइस चांसलर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया, वो भी मौजूद थे, आए थे वो हमारे सेशन में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस। मैं डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स डॉक्टर संगीता जौहरी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमेशा प्रमोट करती हैं इस तरह के इवेंट्स, और वो खुद भी, उन्होंने शायद बताया कि नहीं, वो खुद भी बहुत अच्छी एक डांसर हैं, हमने देखा है उनको परफॉर्म करते हुए। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सभी डीन्स एंड एचओडीज और फैकल्टी मेंबर्स जो इस प्रोग्राम में आज जुड़े और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स मौसमी मैडम, अरुणेश जी, संजय दुबे सर, संजय राठौर सर, सभी का, विक्रांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत स्पेशल थैंक यू टू विशाखा राजुरकर राज मैडम, जिन्होंने बहुत अच्छे से संचालित किया प्रोग्राम और हमेशा से वो करती हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी आवाज भी है और बहुत अच्छे से वो मॉडरेट करती हैं। थैंक यू विशाखा मैडम। और हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर सात्विक जैन, दृष्टि जैन, जो भी इस प्रोग्राम से बैकग्राउंड में जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इट वाज रियली एन एंजॉयबल सेशन. एक डिफरेंट, हम एजुकेशन लाइन से, तो हम एजुकेशन से रिलेटेड सुनते थे, पर आज कुछ एक डिफरेंट जॉनर में हम गए और उसकी बातें सुनी. और जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि बस हाथ कान में हाथ रखकर बहुत बहुत धन्यवाद सबको. थैंक यू बाबा सो मच. प्लीज, थैंक यू. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, नहीं हूँ, मैम. नथिंग. मैम जान ये रहे, आपका बड़प्पन है जो आप ये कहते हैं. थैंक कि यू. ये आपका बड़प्पन है. और हर बड़ा कलाकार जनरली यही बात कहता है जो आप कहते हैं. बट मैं भी विशाखा से कह भी रही थी मेरा एक सेशन है, बट मैं फिर आप लोग के पास आ गई क्योंकि जब डांस की बात होती है तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाती. अरे अभी टाइम तो था मिलना ही जरा- पड़ेगा आपसे, मिलना ही पड़ेगा आपसे. मैम अभी आप जो कह रहे थे, बस एक बात और यहाँ ऐड करूंगी. जब तक विशाखा सबको रिक्वेस्ट करे कि हम एक ग्रुप फोटो भी लेंगे आज यहाँ पे. सो हमारे साथ जो लोग अभी पैनल में जुड़े हैं, कृपया वो अपना वीडियो भी अनम्यूट करें, जिससे कि विशाखा के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा एक ग्रुप फोटो ले सके. जो आपने कहा मैम वो बिल्कुल इट इज अ टाइम जो हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें इस कला के बारे में और जो भी हम बात कह रहे हैं उस जनरेशन को हमें ही बताना है कि हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है, या हमारा नाट्य शास्त्र क्या है, या जो नृत्य की परिभाषा, जो मुझे खुद भी बहुत कई बार दुख होता है ये देख के कि लोग बहुत अलग तरीके से डांस को देखने लगे हैं. तो ये बात बहुत सही है कि अगर रूट्स को हमें बताना है तो हमें ही बताना पड़ेगा बच्चों को कि रूट्स क्या हैं. और इसी श्रृंखला में मेरी बेटी है, वो भी कथक सीखती है मैम, और उसने भी अभी विद प्रथम वर्ष का जो है वो एग्जाम दिया क्या है. बात. That roots बस. are there. Classical is the heart and it is also close to my Of heart. course. But yes, you are very rightly said, जो सर ने भी कहा, विनय सर ने, फोक को भी हमें सपोर्ट करना है. और आपने एक बात बहुत सही कही मैम, जो मैं सच में एक्नॉलेज करूंगी कि हमारे यहाँ पर जब हमें हम लोगों ने भी जब AIU में हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट कराया बच्चों को, तो जो भी हमने बच्चों को डांस सिखाया था, जो हमारे यहाँ का बधाई नृत्य जो मध्य प्रदेश का जो नृत्य है, और भी जो अभी हमने एक नृत्य बच्चों को सिखाया था, तो सच में हमें लोक नृत्य के लिए लोगों को हायर करना पड़ता है और सिखवाना पड़ता है. और बिल्कुल पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बच्चे वो एक जो नॉर्मल फ्री स्टाइल डांस जिसे आजकल कहते हैं, वो एरोबिक्स है, डांस है, सब कुछ सारे स्टाइल्स हैं विद ड्यू यू कैन से रिकॉग्निशन टू ऑल. जब वो फोक करने आते हैं मैम, तो वो 2 दिन में उनकी हालत जो होती है, और उसके बाद जो वो ब्रेक लेते हैं कि उनको समझ नहीं आता. बिल्कुल तो नहीं कि हम वो कोई मैडम हम कर- डांसर हैं, लेकिन जब वो फोक करने आते हैं तो जो उनको समझ आता है, उसके बाद जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वाकई देखने लायक होता है. क्योंकि मैं 2011 से यहाँ कल्चरल में हूँ, मैं चेयरपर्सन कल्चरल कमिटी भी हूँ, तो मुझे बहुत मतलब बाय हार्ट, बाय वेरी क्लोज टू दिस आई एम. तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम, और डेफिनेटली विशाखा बिल्कुल सही कह रही है कि हम अगली बार भी आपको सुनेंगे और अपने बच्चों के साथ आपके साथ फिर साझा करेंगे. So I think we can have group photo, Vishaka, before ma'am leaves the meeting. Yes, I would request everybody to please switch off their videos She so has that made everyone co-host. So I have made, yes. Yes. So Sanjay sir is here, and I think you can click a photograph. Satvik. Yes. Arunesh sir, Vikrant sir, and Drishti. Vinay sir, आप कहाँ चले गए? Satvik, विक्रांत सर इज देयर, सात्विक इज देयर. विनय सर के बिना तो ये पिक्चर अधूरी है. विनय सर, हाँ बिल्कुल अब सही है सर. So I think and दृष्टि के Arunesh sir, can we please have you? As you said मैम, डॉक्यूमेंटेशन, सो हम भी उसी की बात कर रहे हैं अभी. हाँ सही, यही तो अभी ये बहुत जरूरी हो गया है. we are going through this grinding, we are sending our SSR round. Okay. ये परिस्थिति में we are sending, क्या करें. Okay sir, I think we are done with this, Vishaka. Yes, I've done the photos. Okay, fine. So Thank you, बहुत 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 धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद. Thank you. विनय जी, थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर से, फिर मिलते हैं. चलो, ओके सविता जी, ओके, मोस्ट वेलकम. Thank you. बाय बाय.